Hello students, so today we would be moving ahead. Previously we did talk about the basic contents about the cell, nucleus का discussion किया था. We did talk about the difference between the prokaryotes and the eukaryotes. So today we would be talking about the important structure, one more important structure, that is the nucleolus. ठीक है? So previous lecture में we were talking about chromosomes, different types of chromosomes की बात करी थी. और उसमें we did talk about the satellite chromosome. We did talk about the satellite chromosome or the chromosome which possesses NOR, that is the nucleolar organizing region. This nucleolar organizing region that is going to form the nucleolus. ठीक है? So कौन-कौन से थे chromosomes? So we had 13, 14, 15, 20 and 21. ये सब क्रोमोसोम के पास NOR होता है और ये NOR मिलके क्या बनाता है? Nucleolus. Is it clear? So the chromosome number 13, 14, 15, 20, 21, okay, pairs की बात है. So these are a total of 10 chromosomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Because every pair is supposed to have 2 chromosomes. So a total of 10 chromosomes in the human body, in the human cell, would contain NOR, nucleolar organizing region, which is going to form the nucleolus. Okay, so today we would continue with the nucleolus. Okay, so this is not a membrane bound structure, this is a membrane-less structure. Okay, so इसको देख लेते हैं, how does it look like? It is known as the ribosome factory. It is known as the ribosome factory. Now, why ribosome? Because it helps in the formation of ribosome, and ribosome is a very important organelle which is associated with the process of, I did talk about, with the process of protein synthesis. So DNA plus ribosome is going to give us the protein, and the protein is made up of amino acids. Protein के जो subunits होते हैं वो होते हैं amino acids. So I'm talking about the nucleolus या फिर ribosome factory. So how does it appear? So it is a structure which does not have a membrane, and it is surrounded by the genetic material. It is surrounded by the chromatin. It is surrounded by the, this is the perinuclear chromatin which is surrounding it, and it also consists of chromatin on the inner side. यहाँ पे भी अंदर भी chromatin होता है. Okay, so there is the presence of perinuclear chromatin which is forming this outer periphery. Okay, on the inner side also it consists chromatin. अंदर की तरफ भी chromatin है, and along with the chromatin दूसरी जो चीज यहाँ पे present होगी, that is the matrix portion. That is the matrix portion. तो अपन को याद रखना है, the nucleolus is membraneless, without membrane. ठीक है? तो ये जो structure मैंने दिखाया हुआ है, this is not a membrane, याद रखना. This is only the chromatin. This is only the chromatin. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो chromatin अंदर की तरफ present है, this chromatin leads to the formation of rRNA. ये जो chromatin है, the genetic material of the DNA that leads to the formation of rRNA, that is the ribosomal RNA, and the rRNA, it binds with the protein. rRNA, it binds with the protein, leading to the formation of a structure which is in the form of fibers. So यहाँ पे एक नए structure का formation होता है, which is like a fiber inside the nucleolus. We are talking about the nucleolus. ठीक है? And this is known as pars fibrillosa. The structure is known as pars fibrillosa. So pars fibrillosa किससे बना हुआ है? तो pars fibrillosa बना हुआ है rRNA, ribosomal RNA plus
the protein plus the protein, and that is formed by whom? So that is formed by the chromatin. So the chromatin of the DNA, it forms rRNA, and this rRNA, it binds the protein, resulting into a structure known as a fibril kind of structure known as pars fibrillosa. ठीक है? This pars fibrillosa, it has higher content of protein in it. This pars fibrillosa has a higher content of protein. So this structure later on results into the formation of another granule-like structure. It results in another granule-like structure known as pars granulosa. Pars granulosa. And this pars granulosa would lead to the formation of ribosome subunits. जो राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, उसके पास दो यूनिट्स होते हैं. सो यहां पे जो राइबोसोम बनाने का काम करेगा स्ट्रक्चर, दैट इज द पार्स ग्रेन्युलोसा. सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट. ठीक है? सो अपन को याद रखना है क्या क्रोमेटिन जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है rRNA. आई विल मेक दिस एरो फेसिंग दिस साइड. It forms rRNA. This rRNA binds with the protein, and they together result. दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं एक fibril structure, fiber kind of structure known as pars fibrillosa. This fibrillosa, it later on forms another structure, which is termed as pars granulosa. And the pars granulosa leads to the formation of ribosome subunits. There are two subunits, one is the bigger, another is the smaller subunit. ठीक है? तो that results in the formation of, that is formed by the pars granulosa. ठीक है? So that is the reason we term nucleolus as the ribosome factory, क्योंकि राइबोसोम का formation जो होगा वो nucleolus करेगा. ठीक है? So is it clear now? So what does a nucleolus contain? So it contains pars granulosa, pars fibrillosa, and chromatin, and the chromatin on the surrounding, that is the perinuclear chromatin. ठीक है? So let's move ahead. So now we'll talk about ribosome. Ribosome was a very important structure. It was present in the prokaryotes as well, and it is present in the eukaryotes. ठीक है? So let's talk about the ribosome. Pause the video, copy down the details. I hope you are going through all the videos. जितने भी सेल से रिलेटेड चैप्टर्स टॉपिक डिस्कस हुए हैं वीडियोस में, आई होप आप उनकी नोट्स भी बना रहे हो. ओके, सो पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स एंड गो थ्रू द नोट्स एवरी डे. ठीक है? सो दिस वाज न्यूक्लियोलस. नाउ मूविंग टू द अनदर स्ट्रक्चर, दैट इज द राइबोसोम. सो राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम आर नोन एज पेलार्ड पार्टिकल्स. दे आर आल्सो नोन एज द पेलार्ड पार्टिकल्स, और they are also known as the protein factory, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करेंगे. क्या बनाने का काम करेंगे? they are known as the protein factory. इससे पहले मैंने बोला था राइबोसोम फैक्ट्री, अभी मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन फैक्ट्री. सो प्रोटीन फैक्ट्री, ओके, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज, जनरली तो आप उसको राइबोसोम ही बोलते हो. ओके, एंड दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज पेलार्ड पार्टिकल ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट पेलार्ड. ठीक है? सो राइबोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, और लेट्स से डिस्कवर्ड बाय Brown and Robinson. Brown and Robinson. To be more specific, कहां पे? तो in plant cell. ठीक है? And it was observed by Pollard in animals. ठीक है? So this becomes very interesting
ओके क्योंकि यहाँ पे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द नीट कि यार प्लांट सेल में किसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व तो ये 4 लोगों ने कर रखा है, ओके और प्लांट सेल में किसने किया, तो ब्राउन रॉबिन्सन। और अगर एनिमल सेल का पूछा जाता तो एनिमल सेल में किसने किया, तो एनिमल सेल में किया पलार्ड ने। उसी के ऊपर से मैंने यहाँ पे नाम दिया दैट आल्सो टर्म्ड एज द पलार्ड पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज दे आर नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, नॉन membranous structures. ठीक है, they are not the part of the endomembrane system, याद होगा आपको, they are not the part of the endomembrane system and they are present in prokaryotes and eukaryotes. They are present in prokaryotes and eukaryotes, and what they do is protein factories, so they synthesize proteins, they synthesize proteins. ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है ना, सो राइबोसोम इट कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए एज वेल एज प्रोटीन, उसके पास भी प्रोटीन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन, कौन, राइबोसोम। इसी की वजह से वी हैव अ टर्म फॉर इट, इट इज टर्म्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इट इज टर्म्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, सो याद रखना इस टर्म को, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन किसे कहा जाता है, दैट इज आरएनए प्लस प्रोटीन, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंटेन्स आरआरएनए एंड प्रोटीन, सो वी टर्म इट एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, प्लांट सेल में किसने ऑब्जर्व किया था, सो ब्राउन एंड रॉबिन्सन। एनिमल सेल में किसने किया था, तो पलार्ड ने। उसी के ऊपर सबने नाम दिया पलार्ड पार्टिकल। दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बोथ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड। अब यहां पे एक टर्म में देता हूं आपको, दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ जमा हो जाना। लेट्स से आपको पता होगा बेसिक एकदम कि अगर मैं सैंड और वाटर लेता हूं तो क्या होगा, जो सैंड होगी इट इज गोइंग टू सेडिमेंट डाउन, वो नीचे की तरफ, उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे ट्यूब में, और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, ऊपर की तरफ देयर इज गोइंग टू बी वाटर, सो दैट इज सेडिमेंटेशन, टू गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मास और द डेंसिटी ऑफ द object or the substance. Sand is heavier than the water, so what is going to happen, sand is going to deposit at the base or it is going to sediment down. ठीक है, तो in biology we use an instrument known as centrifugation machine. Okay, which works on the centrifugal force. ठीक है, एक मशीन होता है, ओके, एक डिवाइस होता है, जैसे कि लेट्स से इस तरीके से एक मशीन है, दिस इज अ कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, देयर इज अ मोटर एसोसिएटेड, और आपको क्या करना होता है, आपको ट्यूब्स को अंदर प्लेस करना होता है, इस तरीके से ट्यूब्स को आपको अंदर प्लेस करना होता है, और यहाँ पे ट्यूब का होल्डर होगा, जैसे ट्यूब होल्डर, और यहाँ पे मोटर लगी हुई है। सो ये क्या करेगा, ये जो ट्यूब्स है इनको घुमाएगा, जैसे मिक्सी में घूमता है ना, वैसे यहाँ पे भी घूमेगा। ठीक है, और घूमेगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, हेवियर चीजों को, डेंस चीजों को
अपनी तरफ नीचे की तरफ पुल करेगा. सो जितने भी हैवी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी, अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में कुछ डाला है तो जो हैवी कंपोनेंट्स है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स मैंने ऐड किए हैं अगर टेस्ट ट्यूब में, तो जब मैं उसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से निकालूंगा बाहर, ओके, तो क्या होगा, जो हेवियर कंपोनेंट्स है, heavy components settle at the base of the test tube. जो heavier component होगा वो क्या करेगा, settle हो जाएगा, sediment हो जाएगा at the base of the test tube. So this machine with the help of the centrifugal force helps in differentiating components on the basis of the density. ठीक है, so sedimentation समझ में आ गया. Now I'll talk about another term, that is sedimentation coefficient. We'll term another term, that is sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient. Okay, sedimentation coefficient is the rate of sedimentation. It is the sedimentation का मतलब चला गया. So जिस स्पीड से particular compound या material sediment हो रहा है, that is known as the rate of, that is termed as the sedimentation coefficient. So rate of sedimentation of a component is known as सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. कितनी स्पीड में कोई कंपोनेंट नीचे सेटल हो रहा है, सेडिमेंट हो रहा है ना, उसे कहा जाएगा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. एंड वी हैव अ यूनिट फॉर दैट. सो जो यूनिट यहां पे लगाया जाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए, दैट इज द स्वेडबर्ग्स यूनिट. दैट इज द स्वेडबर्ग यूनिट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज एस, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज एस. ठीक है. नाउ मैं ये इसलिए बता रहा हूं यहां पे बिकॉज जो राइबोसोम्स है उनको दो मेजर कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ठीक है. सो वी हैव टू वैरायटीज ऑफ राइबोसोम बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन इज नीचे सेडिमेंट होना, सो कितनी स्पीड से वो सेडिमेंट हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. एंड द यूनिट फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज स्वेडबर्ग्स यूनिट एस. ठीक है. सो राइबोसोम जो है उसकी दो कैटेगरीज अवेलेबल है अपने पास. सो दो कैटेगरी जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन. यहां पे लिख देते बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेस पे वी हैव राइबोसोम व्हिच इज 70s एंड अनदर इज 80s. 70s and the 80s. ठीक है. सो 70 और 80 की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सबसे पहले सेडिमेंटेशन किसका होगा, सो इस चीज का होगा, बिकॉज इसका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो ज्यादा है, 80 है. दैट मीन्स दिस इज मोर हेवियर. दिस पर्टिकुलर राइबोसोम इज मोर हेवियर बिकॉज उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज 80s. इज इट क्लियर? ठीक है. सो नाउ प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम. कहां पे राइबोसोम देखने को मिलेगा? आई होप दिस इज क्लियर. 80s इज हेवियर बिकॉज उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 80s है, मतलब वो ज्यादा जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा, ज्यादा जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा. ओके, ज्यादा जल्दी सेडिमेंट हो रहा है इसका मतलब इट्स हेवी. एंड दिस इज लाइटर. अब वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम. अब अपन बोलेंगे यार दो टाइप के राइबोसोम है, 70s है और 80s है. तो 70s कहां पे प्रेजेंट है और 80s कहां पे प्रेजेंट है? ठीक है. सो प्रेजेंस की अगर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस अगर देखें, कहां प्रेजेंट है, तो यूकैरियोट्स के पास प्रेजेंट है क्या? तो यस, यूकैरियोट्स के पास प्रेजेंट है. हम सॉरी, प्रोकैरियोट्स के पास भी प्रेजेंट है. तो प्रोकैरियोट्स लिख लेते हैं पहले यहां पे. प्रोकैरियोट्स के पास भी प्रेजेंट है. और कहां पे प्रेजेंट है? सेल के अंदर कहां पे? तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है.
present in cytoplasm of cell. ठीक है, so they are termed as cytoplasmic ribosome. You can term it as cytoplasmic राइबोसोम. ठीक है, और कौन सा वाला राइबोसोम प्रेजेंट है? सो जो राइबोसोम प्रेजेंट है यहां पे प्रोकैरियोट्स में, इसको हमेशा याद रखना है, दैट इज 70S. 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, द वन व्हिच वाज नॉट हेवियर. अब आते यूकैरियोट्स के पास. तो यूकैरियोट्स के पास प्रेजेंट है क्या? तो यस प्रेजेंट है. यूकैरियोट्स के पास भी प्रेजेंट है. तो भाई कहां पे प्रेजेंट है? तो यूकैरियोट्स में दो जगह पे प्रेजेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहां पे? दो जगह पे. तो कहां पे? तो एक तो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, एक तो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. ओके, दैट इज साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम. और दूसरा प्रेजेंट है किसके पास? द अनदर वन इज प्रेजेंट विद द ऑर्गेनल्स, दैट इज प्रेजेंट विद द ऑर्गेनल्स, दैट इज प्रेजेंट विद द ऑर्गेनल्स. ठीक है, सो कौन सी ऑर्गेनल्स के पास प्रेजेंट है? तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट है और एक होता है प्लास्टिड्स के पास. सो वी टर्म्ड एज माइटोराइबोसोम. कौन सा राइबोसोम? द वन विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, दैट राइबोसोम इज टर्म्ड एज माइटोराइबोसोम. ठीक है, और कौन सा राइबोसोम है? सो दैट पर्टिकुलर राइबोसोम इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव राइबोसोम, दैट इज 70S. दैट इज 70S. और दूसरा कौन सा ऑर्गेनल जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है? सो वी हैव वन मोर ऑर्गेनल, दैट इज द प्लास्टिड्स, एंड वी टर्म इट एज प्लास्टिडोराइबोसोम. Plastidoribosome because they are present in the plastids. पता है ना plastids? दो ऐसे ऑर्गेनल्स है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है. ओके, सो वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर आर द प्लास्टिड्स. और प्लास्टिड में जो प्रेजेंट है राइबोसोम, विल टर्म इट एज प्लास्टिडोराइबोसोम, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, दैट इज टर्म्ड एज माइटोराइबोसोम. दिस इज ऑल्सो द प्रिमिटिव राइबोसोम व्हिच वी टर्म इट एज the 70S राइबोसोम. ठीक है, सो जो यूकैरियोट्स है उनके पास भी 70S राइबोसोम है. प्रोकैरियोट्स के पास तो 70S राइबोसोम है ही साइटोप्लाज्म में, बट जो यूकैरियोट्स है उनके पास भी 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनल्स. व्हिच ऑर्गेनल्स? सो वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया एंड वी हैव द प्लास्टिड्स. ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम प्रेजेंट है. And we have the ribosomes which are associated with the RER. जो RER के साथ associated है राइबोसोम, those are termed as bound ribosome. Those are termed as bound ribosome. और जो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, they are not associated with the ribosome, I'm saying not associated with the endoplasmic reticulum, they are termed as free ribosome. Getting an idea? कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम अवेलेबल है, ओके, ईदर इट इज टू बी एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो अपन ने बनाए थे वो है, सो विल टर्म दैट राइबोसोम एज द बाउंड राइबोसोम, and the one which is not associated with the endoplasmic reticulum, they are termed as the free ribosome. और कौन सा वाला राइबोसोम है? इज इट 70S और इज इट 80S? सो इट इज द 80S. यहां पे जो राइबोसोम एसोसिएटेड है साइटोप्लाज्म में, दैट इज 80S.
ठीक है, सो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। क्या 70s वाला राइबोसोम यूकेरियोट्स में होता है क्या? तो हाँ होता है। कहाँ पे होता है? तो दैट इज प्रेजेंट विद द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा वाला राइबोसोम है? तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है दैट इज 80s। ठीक है, उसी तरीके से 70s वाला राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी है, दैट इज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ठीक है, सो एज आई वाज टॉकिंग कि यार जो राइबोसोम होता है वो बना है दो कंपोनेंट से, दो सब यूनिट से। वन ऑफ द सब यूनिट इज गोइंग टू बी बिगर, अनदर इज गोइंग टू बी स्मॉलर। द स्मॉलर सब यूनिट इज लाइक अ कैप शेप्ड एंड द बिगर सब यूनिट इज लाइक अ डूम शेप्ड। जो छोटा सब यूनिट होता है वो कैप शेप्ड होता है और जो बड़ा सब यूनिट होता है वो डूम शेप्ड होता है। ठीक है, सो आप यू कॉपी डाउन द डिटेल्स। ठीक है, पॉज करके। So we have two subunits. So ribosome consists of two subunits. ठीक है, smaller and bigger. The smaller subunit is going to be cap shaped. It is going to look like a cap, while the bigger subunit is going to be like a dome shape. ठीक है, so cap and dome. So I'll draw a diagram. So I'll make a dome first. इस तरीके से dome होगा और we'll make the cap. Not exactly like a cap. इस तरीके से होता है। ठीक है, दिस हैज टू बी मोर बिगर। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा छोटा दिखा रखा है। लेट्स मेक द कैप स्मॉल। ठीक है, सो दिस इज द स्मॉलर यूनिट एंड दिस इज द बिगर यूनिट। स्मॉलर एंड बिगर। ठीक है, ये दो सब यूनिट्स एक दूसरे से बाइंड करते हैं तब जाके पूरा राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और यहां पे बाइंड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज Mg2+। Mg2+ helps in binding of two subunits of ribosome. Mg2+ helps in binding of two subunits of ribosome. ये दो जो अलग अलग सबयूनिट्स बिगर एंड स्मॉलर, इन दोनों को बाइंड करके कौन रखेगा? सो दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ Mg2+। ठीक है, अब Mg2+ का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? तो इट इज सपोज टू बी लाइक इन द रेंज ऑफ 1 to 2 मिलीमोलर। इट इज सपोज टू बी इन रेंज ऑफ 1 to 2 मिलीमोलर। ठीक है, तो अगर 1 to 2 मिलीमोलर के प्रोपोर्शन में अवेलेबल है ना, तो ये दोनों स्ट्रक्चर, दो सब यूनिट्स बाउंड रहेंगे। बट इफ इट इज लेस देन 1 to 2 मिलीमोलर, तो उस केस में क्या होगा? ये दोनों जो सब यूनिट्स है ये बाइंड नहीं करेंगे। डू नॉट बाइंड। तो अगर ये दोनों बाइंड नहीं करते तो इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए दे शुड बी इन द बाउंड फॉर्म। तो 1 to 2 मिलीमोलर से अगर कम है तो काम नहीं होने वाला है, और अगर 1 to 2 मिलीमोलर से ज्यादा, इफ इट इज मोर देन 1 to 2 मिलीमोलर, तो यहां पे क्या होगा? राइबोसोम एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। So let's say this is one ribosome, bigger unit and the smaller unit. तो दूसरा राइबोसोम भी क्या करेगा? यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाएगा नीचे की तरफ, इस तरीके से। So we have two ribosomes here. This is a smaller subunit, bigger subunit, bigger subunit, smaller subunit, and this is going to form a dimer. This is going to form a dimer. So getting an idea, if the proportion of Mg2+ is more than 1 to 2 millimolar, वो क्या करेगा? राइबोसोम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड कर देगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर। बट अगर इट इज लेस देन 1 to 2 मिलीमोलर, तो वो दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से बाइंड ही नहीं होगी और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो ये जब दोनों सब यूनिट एक दूसरे से बाइंड होते हैं ना, तो यहां पे एक्चुअल में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कैनाल, एक कैनल बनती है यहां पे, या फिर एक पाथवे बनता है, जिस पाथवे से जो मैसेंजर आरएनए है वो पास हो सकता है। ठीक है, आई रब डाउन दिस कंटेंट। I hope this is clear. Magnesium ion is very important to bind these two subunits. So, जो राइबोसोम है उनके दोनों जो सब यूनिट्स है उसके बीच में एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, कैनाल का फॉर्मेशन होता है, और उस कैनाल में से मैसेंजर आरएनए पास होता है। कौन पास होता है? अंदर से। ठीक है, सो मैसेंजर आरएनए क्यों पास होता है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, consist of all the genetic information which has been transcribed or copied, which has been transcribed from DNA which is located inside the nucleus। मतलब डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए बाहर लाता है और किसके पास लेके आता है? राइबोसोम के पास लेके आता है। राइबोसोम क्या करेगा? व्हाट इज राइबोसोम गोइंग टू डू? तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेके आया था, वी हैव अ टर्म फॉर इट, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हुई है from the DNA on the messenger RNA, the process is known as transcription। अब क्या होगा? ये जो इंफॉर्मेशन आई थी उसको राइबोसोम रीड करता है। राइबोसोम रीड्स दैट इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, जेनेटिक इंफो present on messenger RNA is decoded। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास से मैसेंजर आरएनए लेके आया था, उसको अब क्या किया जाएगा? डिकोड किया जाएगा। ओके, एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, क्योंकि डीएनए अल्टीमेटली तो प्रोटीन्स बनाने वाला है, प्रोटीन दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो यहां पे एक बीच में प्रोसेस आएगा जहां पे अमीनो एसिड सब एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे। बट ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस जहां पे जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई थी उसको डिकोड किया जाएगा और उसको डिकोड करने के बाद वहां से प्रोटीन बनाया जाएगा। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए ऑन द मैसेंजर आरएनए, एंड ट्रांसलेशन इज ये राइबोसोम के पास होगा। ओके, क्या होगा ट्रांसलेशन में कि जो भी मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसको रीड किया जाएगा बाय द राइबोसोम और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स को लाया जाएगा और प्रोटीन बनाया जाएगा। ठीक है, नाउ यहां पे मैंने दिखा रखा है कि देयर इज वन राइबोसोम एंड देयर इज वन मैसेंजर आरएनए। काफी बार क्या होता है कि एक राइबोसोम होता है और काफी सारे राइबोसोम उसके साथ अटैच होते हैं। लेट्स से दिस इज वन मैसेंजर आरएनए, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और एक ही राइबोसोम के सॉरी एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड। एक ही मैसेंजर आरएनए है और उस मैसेंजर आरएनए पे काफी सारे राइबोसोम यूनिट्स अटैच्ड, smaller unit and the bigger unit, smaller unit and the bigger unit. So one messenger RNA and many ribosome. This setup is known as
पॉलीसोम, आप पॉलीसोम बोल सकते हो, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज पॉलीराइबोसोम, वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज पॉलीराइबोसोम, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज अर्गासोम। ठीक है, याद रखना, अगर एक मैसेंजर आरएनए के साथ काफी सारे राइबोसोम एसोसिएटेड है तो विल टर्म दैट सेटअप एज द पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम और अर्गासोम। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ वी डिड टॉक अबाउट कि यार जो राइबोसोम है उसके पास दो सब यूनिट्स है, दो टाइप के राइबोसोम्स वी डिड टॉक अबाउट 70S एंड दी 80S। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक देयर इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड देयर इज अ बिगर सब यूनिट, देयर इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड देयर इज अ बिगर सब यूनिट। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 70S वाला प्रिमिटिव राइबोसोम है उसकी जो दो सब यूनिट्स है, उस सब यूनिट का जो छोटा वाला सब यूनिट है दैट इज 30S, और जो बड़ा वाला सब यूनिट है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 50S, 30 एंड 50। और जो 80S वाला राइबोसोम है उसका जो छोटा सब यूनिट है दैट इज 40S, और जो बड़ा सब यूनिट है दैट इज 60S। मतलब इस सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 60, इसका 50, इसका 30, इसका 40। So most of you would add up it, add कर दोगे 60 plus 40 that is 70, 80, 90, 100, 50, 60, 70, 80। सर ये तो 80 हो गया, ये तो 100 हो रहा है। But you don't have to add them up. There is no requirement of adding them up. This is not the addition of both of them. Okay, ये as a whole दोनों सब यूनिट का अगर आप सेडिमेंटेशन देखते हो तो वो 70S होता है, दोनों सब यूनिट्स का आप सेडिमेंटेशन देखते हो तो वो 80S होता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू एड देम अप। इंडिविजुअली अगर आप सब यूनिट इंडिविजुअली अगर आप सेडिमेंटेशन देखते हो तो 70S वाले राइबोसोम का जो छोटा सब यूनिट है उसका 30S होता है, बड़े सब यूनिट का 50S होता है। 80S वाले राइबोसोम का जो छोटा सब यूनिट है उसका 40S होता है, और बड़े वाले का 60S होता है। ठीक है, सो आई होप ऑल दी टर्म्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक आर क्लियर। क्या राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट, अच्छा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि जो राइबोसोम्स है, दिस इज क्लियर 70, 80, 30, 50, 40, 60। ठीक है, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? प्रोटीन इज एक्चुअली a polypeptide chain of amino acids. So amino acid के monomers बनाते हैं प्रोटीन। So this is one amino acid, okay? ये सब amino acids मिलके, this amino acids are added here with the help of the transfer RNA, okay, which is triggered by the ribosome. Ribosome trigger करता है ट्रांसफर आरएनए को, अमीनो एसिड्स लेके आने को। तो जो अमीनो एसिड यहाँ पे आए हैं, एक्यूमुलेट हुए, उनको एक दूसरे के साथ बाइंड किया जाता है, और जो बॉन्ड यहाँ पे होता है दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है, तीन अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड तो वन पेप्टाइड, अनदर पेप्टाइड, तो टोटल डाइपेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो काफी सारे बॉन्ड्स आ जाएंगे ना। तो प्रोटीन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो दैट इज दी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये जितने भी अमीनो एसिड के मोनोमर्स है ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से बाउंड है, और काफी सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स अवेलेबल हो गए एक प्रोटीन में, तो इसलिए मैंने क्या टर्म दिया यहाँ पे? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। नाउ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज में आता है दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। The enzyme is पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा?
पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, अब मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स और मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट इन अवर बॉडी इज प्रोटीन बेस्ड। ओके, जो एंजाइम्स है, जो हार्मोन्स है, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन बेस्ड। बट यार केस में जो मैं नाम लिख रहा हूं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, दिस इज नॉट अ प्रोटीन बेस्ड एंजाइम। ओके, सी मैं यहां पे लिख देता हूं, it is a RNA based enzyme. Generally we have protein based enzyme, but this is a RNA based enzyme and it is termed as ribozyme. It is termed as ribozyme. Okay, it is termed as ribozyme. ठीक है, so peptidyl transferase enzyme which is present with the ribosome, okay, it helps in the formation of the peptide bonds, okay, is actually a RNA based enzyme. It is actually a RNA based enzyme and we termed that enzyme as ribozyme. Simple and easy. So I'll keep this much for the lecture. If any doubts, you drop me a message. Okay, so please make the notes, don't forget to make the notes. I hope this is clear. Proteins जो बने हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की मदद से बनता है, which is present in the ribosome. And this peptidyl transferase is a RNA based enzyme. और जितने भी RNA based enzyme होते हैं they are termed as ribozyme. Clear है? चलो, so we'll give this much for the lecture.